Today's discussion is based on the stock options. If you remember, in the last class, we were talking about the different types of derivative securities. There we talk about the forward, futures, swaps, and the options. So today's discussion is based on the stock options, how these options are available in a market or being traded, or how the investor can purchase or sell that option. We will talk about it today. So the similarly option, the stock option is a derivative security. Again, like this option is a contract on a stock. That's why it's called stock option. The same options are available in the currency exchange as well. So this is called uh, currency or options, या forex options भी हम कहते हैं. So a stock option is a derivative security because the value of the option is derived from the value of the underlying common stock. Because these derivative securities or derivative contracts are available on the common stock, so that common stock is our underlying asset. And in that way, the performance, like performance of derivative security, performance of that derivative security means either to exercise it or not, is somehow going to depend, that performance somehow going to depend on the performance of the स्टॉक परफॉर्मेंस जो हमारे पास होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगी. तो आगे जाके हम इस चीज़ को देखते हैं, हाउ द फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस विल डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ द डेरिवेटिव सिक्योरिटी. And that derivative securities are going to give some option to the buyer of that security. So in that case, what sort of facilities are available in derivative securities? We will talk uh, these facilities one by one. Like there are two types of options in the derivative securities. The one is called call option and the second one is put option. Like as a buyer, if you enter in a market to secure the risk, and do remember these derivative securities are in a market to secure the risk of a future transactions. Like if I wanted to buy a stock of any form in a future, so with that assumption that in the future the price of that particular security might fluctuate, so that fluctuation volatility is my risk. So to control that risk, I would prefer to purchase a stock today, or even I would prefer to have a contract of purchasing a stock in a future. तो आज मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा मार्केट में. ऐसे मेरे पास कुछ एजेंट्स अवेलेबल हैं, उन एजेंट से मैं आज एग्रीमेंट कर लूँगा कि ठीक है फ्यूचर में मैंने आपसे जो स्टॉक परचेज करना है उसकी मुझे आज आपका क्या प्राइस देंगे. तो एजेंट जो है वो आपसे एक एग्रीमेंट कर लेता है. दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड योर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. तो वो स्टॉक के ऊपर वो एग्रीमेंट करेगा, ठीक है आपको मैं इस प्राइस के ऊपर फ्यूचर में एक स्टॉक जो है वो आपको दे दूंगा, इररिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक इन अ फ्यूचर. तो इस केस के अंदर जो बायर है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया है, तो यहाँ पे लाइक इफ आई वुड से देयर इज अ बायर, और यहाँ पे हमारे पास है एजेंट है, जो भी जो मार्केट में अवेलेबल है, दैट एजेंट इज अवेलेबल इन अ मार्केट. दैट बायर, ये जो बायर एक्चुअली करने का जा रहा है, बाइंग, बायर इज गोइंग टू बाय अ डेरिवेटिव. So do remember that derivative is a contract option available in the market. तो ये डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं जो ऑप्शन अवेलेबल है इन मार्केट में. तो वो बायर जो है वो एजेंट के पास जाएगा, और एजेंट जो विल चार्ज अ सर्टेन फी, इसकी कोई ना कोई फी होगी, लाइक 1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये एक सर्टेन फी चार्ज करेगा और एग्रीमेंट करेगा कि ओके इन अ फ्यूचर लाइक आफ्टर 3 months आई विल गिव यू अ स्टॉक at, let's suppose whatever the price is, like at $90. So if after 3 months the price of that stock is around 100, then the buyer would be very happy.
okay, in the market price of that stock is $100, but I will get a stock price 90 from the agent because I have done, or even I have signed an agreement. Or in that case, the buyer would be very happy, और buyer can exercise that derivative contract. वो इस contract को exercise करेगा और agent जो है वो $90 के ऊपर उसको share transfer कर देगा. But in case the price in the market after 3 months is 80, so in that case is a normal scenario is that the buyer would be the loser. Buyer को जो है वो loss होगा क्योंकि मार्केट में जो है वो स्टॉक अवेलेबल है 80 डॉलर में, और आपने एग्रीमेंट किया कि मुझे 90 में चाहिए, तो बायर वुड नॉट बी हैप्पी टू परचेज द स्टॉक एट $90 बिकॉज द मार्केट प्राइस इज 80. तो इस केस में द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर अलाउ द बायर टू हैव अ लॉस. इस केस के अंदर गुड थिंग इज बायर विल नॉट बी इंगेज इन अ loss stage. What the buyer will do in a derivative contract, there is an option. That's why it's called option. Buyer के पास यहाँ पे हमारे पास option available है either to exercise that contract or not. तो buyer in a derivative market having a option of exercise the contract. क्योंकि बायर ने यहाँ पे 1% एजेंट को फीस दी है, और इस फी के अगेंस्ट जो हमारे पास एजेंट है ये एक राइट भी ट्रांसफर कर देता है. तो ये राइट भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा. राइट कौन सा? राइट टू एक्सरसाइज. राइट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट वो बायर एंड पे चला जाएगा. एजेंट के पास कोई राइट नहीं है. एजेंट वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे बायर कहेगा. अगर बायर कहेगा मैंने ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो मैंने एग्रीमेंट है मैंने इस एग्रीमेंट को एक्सरसाइज करना है, एजेंट विल से ओके. इफ बायर विल से आई एम नॉट विलिंग टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, then agent will say okay. Agent will have to obey all the options that the buyer will give. That's why at the agent side this is the obligation. जो एजेंट मार्केट में बैठा हुआ है दैट एजेंट इज कॉल्ड ऑप्शन राइटर. ये ऑप्शन राइटर है, इसने राइट करके दिया आपको ये डेरिवेटिव. और दैट बायर ऑफ द ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन होल्डर. इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है. तो ऑप्शन होल्डर ने जो ऑप्शन उसके पास है वहां उसके पास राइट है टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. बट एजेंट का राइट नहीं है टू डू समथिंग. इट्स ऑब्लिगेशन. द एजेंट विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बायर. अब इस केस में देखें, इफ द प्राइस इज 80 डॉलर, इन दैट केस द बायर विल नॉट एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो बायर का लॉस कितना होगा? ओनली 1% ऑफ द वैल्यू. इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि बायर का जो लॉस है द लॉस इज ऑलवेज मिनिमम. मिनिमम किसके? मिनिमम टू फी चार्ज. जितना भी स्टार्ट के ऊपर फी चार्ज की होगी उतना सिर्फ बायर को लॉस होगा, क्योंकि बायर कभी भी लॉस के ऊपर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा. बट इन केस ऑफ प्राइस व्हेन द प्राइस इज मोर देन 90, स्टॉक की प्राइस जो है वो 90 हो गई है और इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो मार्केट प्राइस में जब आपकी मार्केट प्राइस जो है दैट इज हायर, लाइक इफ द स्टॉक एक्सरसाइज प्राइस इज 90, नाउ द स्टॉक प्राइस इज अराउंड $100. तो इस केस में बायर हैप्पी होगा. बायर को पता है कि मार्केट में $100 का और मुझे इस वक्त जो है वो 90 में मिल जाएगा. तो इन दैट केस द बायर विल एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट. एजेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज की ऑप्शन उसको दे देगा. इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट है दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम. ये लिमिटेड नहीं है. प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमने बात की, लॉस जो है वो लिमिटेड होगा क्योंकि बायर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को इफ देयर इज अ लॉस इन अ मार्केट. इन केस ऑफ प्रॉफिट द बायर वुड बी हैप्पी टू एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट.
It means as the price goes up, like 100, 101, 100, 200, 3, the profit will also increase. That's why in derivative contract, the option holder, like the buyer of the option is called option holder, having a limited loss but a maximum profit. So we will talk it later as well. So this is the basic understanding and philosophy of option contract. So there are two types of contract. The one is a call option and the second one is called put option. In a call option, normally what we say, we purchase the option to buy something. Like the call options are options to buy the underlying asset. We purchase option from the agent with that assumption that in a future I will purchase some stock for a given price. Or input option, that is somehow the opposite of the call option. I will purchase option with this agreement in a future I will sell समथिंग, सम एसेट्स, सम स्टॉक। मेरे पास कुछ स्टॉक है और मैं 3 माह के बाद सेल करना चाह रहा हूँ, तो आज मैं एजेंट से उस एग्रीमेंट को अंडरलाइन करवा लूंगा, एग्रीमेंट साइन कर लूंगा अगेंस्ट अ सर्टेन फी, और फ्यूचर में मैं वो स्टॉक जो है वो उस एजेंट को सेल कर दूंगा। और अगर मैं फ्यूचर में परचेज करना चाहता हूँ तो आई विल परचेज अ कॉल ऑप्शन, और इफ आई वांटेड टू सेल स्टॉक इन अ फ्यूचर, तो सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन सी ऑप्शन को परचेज करूंगा, दैट इज कॉल्ड माई पुट ऑप्शन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन। तो ये हमारे पास जो लिस्टेड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड टू फैसिलिटेट द ट्रेडिंग एंड प्राइस रिपोर्टिंग। और इसमें नॉर्मली हमारे पास जो ये ऑप्शंस होती हैं, इनमें कुछ बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑप्शंस होती हैं। लाइक वी कैन नॉट परचेज ऑप्शन फॉर 1 शेयर ओनली, और 2 शेयर और 3 शेयर्स। So there is a limitation. Like we can buy a one option. That one option is having 100 shares or 200 shares, whatever a minimum criteria is. Like a one option is equal to 100 shares approximately. So that if I wanted to buy a one option, it means overall I will purchase 100 share of a single company. Okay, now there are some basic terminologies that are very important to deal with these sort of derivatives. सर मेरा क्वेश्चन है Yes. सर ये जो फीस चार्ज करता है एजेंट और ये सिनेरियो टू डन हो गया थैंक अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि लाइक किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। द परफॉर्मेंस इज सेम एज यू नो अबाउट द स्टॉक परफॉर्मेंसेज एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ याहू फाइनेंस से डेटा है, जैसे ये डिफरेंट स्टॉक ऑप्शन अवेलेबल है, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो आप फ्रीक्वेंटली याहू फाइनेंस से भी इसको विजिट कर सकते हैं। बिड बिड रेट है, आस्क रेट है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑप्शंस ये कितनी है, ये डिटेल आप याहू फाइनेंस से चेक भी कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, now the stock index option is an option on a stock market. I have already told you about these scenarios. Now the two major things are there, like the options are called in the money or out of the money. Sometime we call in the money, and a second option is called out of the money. Its basic thing is if we are getting profit from that option, this is called in the money option. Very simple. If there is a profit in any option like put and call option, we will say it's in the money. If your option is going to give you loss, that is called out of the money. Now we will see what is the criteria of looking into it. The stock price and strike price, there are two prices are there. Stock price is a market price and strike price is the price that you have agreed, that is agreement.
that is the agreement between the two parties. So strike price is the agreement, like after 3 months I will purchase the stocks at a price of 100. Like if I write $100, that $100 is a strike price, because that is the agreement. The stock price in the market might be $98. That might be $98, or like $1 or $2. So whatever the market price is, that is called the strike price. But the price that we have agreed to purchase or sell the stock in a future, that is called my strike price. That is not the 100%. This is called the $100. That $100 is my strike price. Now let's have a comparison. In call option, you remember call option is right to buy. We will buy something. So in the money mean, if the strike price is greater than the stock price, then it means it's in the money. Now remember, what does I mean? Strike price is 100 and stock price is, in case, 1 or 2. If that 1 or 2 is greater than 100, इस केस के अंदर जरा देखें. Right now I am talking about this one. If stock price is greater than the strike price, this is called in the money. It means that there is a profit. प्रॉफिट कैसे होगा कि एग्रीमेंट किया है लो प्राइस पे और मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, तो द बायर वुड बी हैप्पी टू एक्सरसाइज इट. सो इन दैट केस, if stock price is greater than the strike price, this is called in the money. In case of call option, मैंने आपको बताया कॉल ऑप्शन में क्या है, राइट टू बाय. और दूसरी सीन के अंदर इसके ऑपोजिट है. आउट ऑफ द मनी कब होगा? व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एस. ये जो इक्वल टू है, इसकी मैं आगे जाके आपको डिटेल बताऊंगा. दैट इक्वल टू मीन्स बिकॉज ऑफ द कमीशन. जो फी चार्ज होती है, उस फी की भी तो एडजस्टमेंट यहाँ पे होनी है. उस फी की भी एडजस्टमेंट है. लाइक अगर मार्केट में प्राइस जो है वो $100 हो जाए और स्ट्राइक प्राइस भी 100 थी, लेट्स हैव अ कंपैरिजन. लाइक इफ स्ट्राइक प्राइस एंड स्टॉक प्राइस इज सेम, तो बायर को, जो स्टॉक होल्डर होगा, जो स्टॉक जिसने बाय किया, उसको क्या बेनिफिट होगा? उसको बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा. उसको जो फी उसने चार्ज की होगी, उसका उसको लॉस होगा. तो कॉल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट स्टार्ट होगा लाइक 98 से. या यहाँ पे अगर हम इस केस के अंदर हम बात कर लें, व्हेन द प्राइस वुड बी 102, जैसे अभी मैंने बात की है 101 पे, वो $1 तो कमीशन ही होगा. इफ आई राइट 101, तो stock price is 100, 101, and strike price is 100. We can say that $1 is profit, but $1 profit is equal to the commission of the agent. तो वो जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो तो मैंने एजेंट को दे दिया. तो इस केस में मुझे कमीशन को भी एडजस्ट करना है. तो मैं ये कहूँगा कि मेरा प्रॉफिट 102 से स्टार्ट होगा. एज द प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 102 टू ऑनवर्ड, द कॉल ऑप्शन विल गिव यू प्रॉफिट. तो इस केस के लिए ये इक्वल टू का साइन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ अ फी. अब पुट ऑप्शन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. पुट ऑप्शन में क्या है मेरे पास? राइट टू सेल. मैंने इस चीज को सेल करना है. अब सेल के अंदर इफ आई वुड से द मार्केट प्राइस इज 100, like strike price, sorry, the agreement strike price is 100 and the market or a stock price is 98. अब मैंने इसको सेल करना है, तो स्ट्राइक प्राइस 100 है, मार्केट में सेल करूंगा तो 98 का सेल होगा, और अगर एग्रीमेंट के थ्रू सेल करूंगा तो 100 का सेल हो रहा है. तो दैट इज अ गुड थिंग. इन दैट केस माई स्ट्राइक प्राइस should be greater than the stock price in case of getting profit in put option. So that's why in put option
your strike price should greater than the stock price. In case if we wanted to see the in the money option, out of the money it's loss, it's a reverse process. If stock price is greater than or equal to the K, there is a loss. आगे जाके हम इसकी जरा डिटेल से इसकी एग्जांपल और डिस्कशन भी करते हैं. Okay, these are some things that you need to remember. Who is a writer और who is a holder, और इन दोनों के जो है वो राइट्स क्या मैंने आपको आप पहले बता भी दिए कि जो द सेलर ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ राइटर. जो एजेंट है उसको राइटर कह रहे हैं, ऑप्शन राइटर. ऑप्शन राइटर जो है उसका ऑब्लिगेशन है यहाँ पे टू एक्ट लाइक अ एजेंट, और उसने किसके एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन डन बाय द बायर. इसको अभी रीड भी कर लेते हैं. द राइटर ऑफ अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द अंडरलाइंग एसेट टू द कॉल ऑप्शन होल्डर. ऑप्शन होल्डर जो है, जो बायर जिसने ऑप्शन आपसे बाय की है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करना है. यू कैन नॉट डिनाई. द कॉल ऑप्शन होल्डर हैज द राइट टू एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. उसका राइट है. राइट मीन्स कि वो एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी करेगा. वो कब नहीं करेगा? जब उसको लॉस हो रहा होगा वो नहीं करेगा, जब प्रॉफिट हो रहा होगा वो कर लेगा. तो ये ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर का कॉन्सेप्ट है. ये मैं पहले भी आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगेन द सिमिलर थिंग. अब यहाँ पे हमारे पास अगेन द ऑप्शन पेमेंट वर्सेस ऑप्शन प्रॉफिट. या पेमेंट आपके पास जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि पेमेंट यहाँ पे है लाइक ऑप्शन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इनिशियल एंड टर्मिनल कैश फ्लो. इनिशियल कैश फ्लो वो फी है जो ऑप्शन प्राइस आप जो है वो नॉर्मली पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम. और टर्मिनल कैश फ्लो द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज एक्सपायरेशन ऑफ ऑफन कॉल्ड द ऑप्शन पे ऑफ. जो आपके पास स्ट्राइक प्राइस जिसको मैं कह रहा हूँ, दैट स्ट्राइक प्राइस इज कॉल्ड माई टर्मिनल कैश फ्लो, और इनिशियल कैश फ्लो इज द ऑप्शन प्रीमियम. अब नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स.